Good afternoon to one and all. Class 12 students, biology session is soon going to start. Hello students, good afternoon. I am Monica Malhotra, PGT Biology from KV Push Bihar, New Delhi. Today I am here for the biology session for class 12th on 22nd of April 2020. Now this date is very significant for all of us, especially for the students of biology. Yes, students have not joined in yet. I can see very less attendance. Yes, students, join in for the session. Yes, students of class 12 biology. Yes, join in. The session has started. Hello. Good afternoon to one and all. Yes. Class 12 biology students. Please call rest of your friends. Join the session fast. Okay, so we were discussing about the significance of the date, 22nd April 2020. So what is the significance? Yes, the biology students must know. Today is a very significant day to be celebrated. Yes, today is Earth Day. So we are here to celebrate Earth Day in a novel way today. In the schools, we used to celebrate, we used to organize poster competitions, then speech on the Earth Day, and the slogan writing competitions, and many more activities. But today we are all under lockdown. We have restricted activity, but still we'll celebrate Earth Day in a novel way. So today, on every year, 22nd of April, we celebrate Earth Day. I think you all know, being students of biology, why do we celebrate Earth Day? It is an annual event. It is celebrated on this planet to raise the public awareness about pollution and all the other negative activities which spoil the Mother Earth. Okay, so not only pollution, there are other activities also, the wastage of natural resources and everything like that. We should put an end to all those activities to save the Mother Earth. And this day of 22nd April, it is marked to be observed worldwide with rallies, conferences, outdoor activities, and service projects. But this year, it's an unusual time when we are all over the world, we are under lockdown and we can't do all these activities. So now today, what we are going to do, we are going to take a pledge that we will be the saviors of the Mother Earth. Some background you must know. This Earth Day, the celebration of the Earth Day started first in 1970 in New York, and then the events were coordinated globally on the whole Earth, and now almost 193 countries together celebrate this day as Earth Day. So me and you all today, we are going to take a pledge to save the Mother Earth. It is the Earth Day pledge. Mata Bhumi Putro Aham Prithvyah. What does it mean? It means Earth is my mother and I am the son of the Earth. So together we all will take this pledge now. You will take your own names, and if possible, you will make a recording of this pledge and you will send it to your class teacher or any subject teacher. Okay, the pledge goes like this. I, you will repeat after me. I, Monica Malhotra, take your own name, shall imbibe this spirit and pledge that I shall always preserve the earth and protect the natural resources in my daily life. So it's a sankalp to serve the Mother Earth. So you all, as students of biology, you have all the more responsibility to make your family and your friends and your neighborhood aware about the significance of Earth Day and the measures we should take to protect the Mother Earth. Okay, so after this
significant activity. Now we come to the recap. In yesterday's lecture, we had studied about gametogenesis, spermatogenesis, and oogenesis. So today, we are going to take a quick recap. We are going to do a quick recap. Question number 1. What is the stage of the cell at the time of ovulation? ओवुलेशन के टाइम पे जो ओवुलेट होता है फीमेल गैमीट का सेल, जो आगे चल के फीमेल गैमीट बनाता है, उसका प्रिमिटिव सेल, उसका स्टेज क्या होता है? व्हाट इज द स्टेज ऑफ द सेल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन? ओवरी से कौन सा सेल बाहर आता है? किस स्टेज में सेल बाहर आता है? ऑप्शन ए प्राइमरी oocyte, ऑप्शन बी फर्स्ट पोलर बॉडी, ऑप्शन सी सेकेंडरी oocyte, एंड ऑप्शन डी सेकेंड पोलर बॉडी. Yes, I'm waiting for your answers in the comment box. Yes, please. Very good. So many of you like Nimisha, Nikhila, and Bindu, Sarita Devi, Srijal Priya, Jyotika. Yes, you have given the correct answer. Dhanishta Maheshwari. Yes, this is the correct answer. So the correct answer is option C, secondary oocyte. So in which stage the ovulation after ovulation the cell comes out? In the stage of secondary oocyte. Okay, now we move on to question number 2. Yes, many of you, Prince Singh, Saqib Chaudhary, Naveen Jalihal, many of you are giving the correct answer. Very good. Abdul Rashid, yes, good. Okay, now we move on to second question. Second question goes like this. In spermatogenesis, which cells are produced at the end of growth phase? मैंने समझाया था स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. तो ग्रोथ फेज के एंड में कौन से टाइप के सेल बन जाते हैं? हाँ जी, अभी तक सबका आंसर सही था, बिल्कुल सही बताया आपने सी पार्ट. अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए. सेकंड क्वेश्चन आंसर कीजिए. ए पार्ट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बी स्पर्मेटोगोनिया, सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड डी इज स्पर्मेटिड्स. ग्रोथ फेज के एंड में कौन से सेल्स बनते हैं? No, the option is A. The correct answer is A, primary spermatocytes. बेटा मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं. स्पर्मेटोगोनिया की ही पूरी आर्मी बन जाती है. स्पर्मेटोगोनिया फिर ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं एंड आफ्टर द ग्रोथ फेज दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. सो करेक्ट आंसर इज A part. Okay. Now we move on to the next question. Question number 3. Name the process involved in multiplicative phase of spermatogenesis. Spermatogenesis में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? A part is meiosis, B is mitosis, C both mitosis and meiosis, D is none. Okay, Sanjana is saying pick is not clear. Yes, others, for others the video is clear, the visual is clear. Please think about the question and then give the answer. Name the process involved in multiplicative phase of spermatogenesis. Spermatogenesis के multiplicative phase के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ कौन सा प्रोसेस चलता है? माइटोसिस का प्रोसेस चलता है. करेक्ट आंसर इज बी. यस, ज्योत्सना रिचा हैज गिवन द करेक्ट आंसर, माइटोसिस. सत्यम, यस. निमिषा हैज गिवन आंसर माइटोसिस, बिल्कुल सही है. ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. यस, मानसी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, माइटोसिस. Okay, now we come to question number 4. Which of these are diploid cells? इनमें से कौन से प्रकार के सेल्स डिप्लॉयड नेचर के होते हैं? ऑप्शन ए स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन बी स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन सी स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन डी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. इन चारों में से कौन से डिप्लॉयड है? Yes, I am waiting for the correct answer. नो, यस, अभी तक माइटोसिस का आंसर चल रहा है, बिल्कुल सही है. ये नायब खान ने क्या ये वाला ऑप्शन दिया है? नायब खान ने अगर सी पार्ट बोला है तो ये बिल्कुल सही है. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट, स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया ही इनमें सिर्फ डिप्लॉयड है. बाकी जितने भी सेल बाकी लिखे हैं वो सब मियोसिस के बाद बनते हैं. ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटोजोआ, ये सब आफ्टर मियोसिस बनते हैं. तो इनमें रिडक्शन डिवीजन हो चुकी है, ये सब हैप्लॉइड हो चुके हैं. सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया ही डिप्लॉयड है. सी, यस, साक्षी has given the correct answer. C is the correct answer, beta. Spermatogonia, right? Yes, Shubham has given the correct answer. Shivani Dubey, Mansi, yes.
ऑल हैव गिवन. नायब खान, यस बिल्कुल सही. कृष्ण कुमार बिल्कुल सही है. स्वाभि कुमार बिल्कुल सही, सी ऑप्शन. तो अब सबको पता लग गया है कि सी पार्ट करेक्ट आंसर है. अब इसके बाद हम आज के सेशन पे चलते हैं. वी वर स्टार्टिंग अबाउट oogenesis. oogenesis की बात कर रहे थे. हमने इसके तीनों स्टेप्स पढ़ लिए थे. इसके भी 3 फेजेस हैं. पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैचुरेशन फेज. ठीक है. लेकिन अभी मैं इसका थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू आपको समझाऊंगी कि ओवरी के अंदर कब कौन सा सेल बनता है. ओके. सबसे पहले मैंने आपको बताया था oogenesis कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है. oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है. पहला डिफरेंस तो ये था. और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जर्म सेल्स, ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे oogonia बनने शुरू हो जाते हैं. कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से. तो oogonia or the plural is oogonia, they are formed within the ovary at the embryonic stage only. फीमेल एम्ब्रियो में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है और ओगोनियम जो मल्टीप्लिकेटिव फेज का स्टेज है वो बन जाता है. मल्टीप्लिकेशन के बाद oogonia बन जाते हैं. ठीक है. oogonia आगे और माइटोसिस अंडरगो करते हैं और माइटोसिस अंडरगो करके अपने जैसे और oogonia बना देते हैं. लेकिन अब ये जो रिजल्टेंट oogonia है इनका साइज छोटा होता है, तो दे अंडरगो ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज के बाद ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म प्राइमरी oocyte. अभी तक प्राइमरी oocyte तक पहुंचने में कभी भी मियोसिस नहीं हुआ है, माइटोसिस ही चल रहा है. इसीलिए यहां तक जो प्लॉइडी स्टेटस है वो डिप्लॉयड है. oogonia भी डिप्लॉयड थे, प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड है. अब इसके बाद प्राइमरी oocyte तक जब बनने तक ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाता है. नाउ दिस प्राइमरी oocyte दे एंटर द मैचुरेशन फेज. मैचुरेशन फेज में एंटर करते ही प्राइमरी oocyte कौन सा डिवीजन अंडरगो करेंगे? दे विल अंडरगो मियोसिस. We know that meiosis cell division gets completed in 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is the reductional division, meiosis 2 is the equational division. Meiosis 1 reductional division है क्योंकि यहाँ क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएगा, यहाँ सेल हैप्लॉइड बन जाएगा meiosis 1 के बाद. लेकिन meiosis 2 अंडरगो करने के बाद सिर्फ जो डॉटर सेल्स है उनका नंबर डबल होगा, क्रोमोसोमल काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा. इसीलिए meiosis 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. This all you have studied in the chapter cell division, chapter 10 of class 11th, right? तो अभी प्राइमरी oocyte जो है meiosis 1 में एंटर कर जाएंगे. लेकिन देखिए बड़ी कमाल की बात है, प्राइमरी oocyte meiosis 1 स्टार्ट तो कर लेते हैं, meiosis 1 में पहुंच जाते हैं, लेकिन meiosis 1 में ही अरेस्ट हो जाते हैं. मतलब meiosis 1 का जो डिवीजन है इसकी सारी स्टेजेस कंप्लीट नहीं कर पाते. आपको याद है meiosis 1 में कौन कौन सी स्टेज थी? यस, 5 फेजेस आते हैं meiosis 1 के. प्रोफेज, इसमें 4 स्टेजेस. meiosis 1 में 4 मेन स्टेजेस क्या है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ठीक है. ये 4 meiosis 1 की स्टेजेस है. और meiosis 1 की जो पहली स्टेज है प्रोफेज 1, उसमें जाकर प्राइमरी oocytes meiosis 1 में ही अरेस्ट हो जाते हैं. meiosis 1 की प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाते हैं, वो मेटाफेज 1 तक पहुंचते ही नहीं है. ठीक है. तो प्रोफेज 1 में ही ये कांस्टेंट रह जाते हैं, आगे की डिवीजन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आगे की डिवीजन फॉलो करने के लिए इनको स्टिमुलस चाहिए. वो स्टिमुलस कौन देगा? वो स्टिमुलस देगा FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से. कब रिलीज होगा? जब प्यूबर्टी अटेन होगी. ठीक है. इसका मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte meiosis 1 में एंटर कर जाते हैं, लेकिन meiosis 1 का सिर्फ प्रोफेज 1 उसी में ही ये अरेस्ट हो जाते हैं. ये कभी प्रोफेज 1 को कंप्लीट करके मेटाफेज 1 में जाते ही नहीं है. meiosis 1 का पूरे स्टेजेस कंप्लीट ही नहीं हो पाते, क्योंकि इनको कंप्लीट करने के लिए जो स्टिमुलस चाहिए वो FSH हार्मोन देगा. और FSH हार्मोन कब सिंथेसाइज होगा, कब सीक्रेट होगा? प्यूबर्टी पे सीक्रेट होगा. ठीक है. जब वो फीमेल इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर होगा, प्यूबर्टी की स्टेज आएगी उसकी लाइफ में. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए. तो बस आप इतना समझ लीजिए, oocytes they become arrested in the diplotin stage of prophase 1. प्रोफेज 1 की 5 कौन कौन सी स्टेजेस थी? याद है कुछ? प्रोफेज meiosis 1 के प्रोफेज 1 में आती थी, यस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये 5 फेजेस थे, 5 स्टेजेस थी. इन पांचों स्टेजेस की कौन सी स्टेज पे जाके अटक जाते हैं प्राइमरी oocyte? डिप्लोटीन स्टेज. यानी कि meiosis 1 के प्रोफेज 1 के वो
लेप्टोटीन स्टेज पूरी कर जाते हैं, जाइगोटीन पूरी कर जाते हैं, पैकेटीन पूरी कर जाते हैं, लेकिन डिप्लोटीन में जाके अटक जाते हैं, वहां अरेस्ट हो जाते हैं। और डिप्लोटीन स्टेज को कंप्लीट करने के लिए उनको स्टिमुलस कौन देगा? एफएसएच। वो स्टिमुलस उनको कब मिलेगा? ओनली एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये बात आई थिंक बहुत क्लियर हो गई होगी आपको। तो मियोसिस 1 कंटिन्यू करता है, वो मियोसिस 1 का स्टेज कंप्लीट फेज कंप्लीट होता है ओनली व्हेन अ फीमेल हिट्स द प्यूबर्टी। ठीक है, every month one or more primary oocytes they undergo meiosis 1 and they create secondary oocytes. puberty के बाद ये primary oocytes में होल्ड लग जाती है कि वो कौन सा प्राइमरी oocyte पहले meiosis 1 कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर ये जो सेकेंडरी oocytes है, ये उसके बाद सेकेंडरी oocyte कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte भी आगे चलकर अब क्या करेंगे? दे विल अंडरगो मियोसिस 2। याद है कल हमने पढ़ा था, जब हमने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा था, कि प्राइमरी oocytes they undergo meiosis 1 and they form secondary oocytes. Secondary oocytes undergo meiosis 2 and they form ooted. It is also called ovum. याद है? तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसका मतलब अब इनको मियोसिस का डिवीजन कंप्लीट करना है। दे हैव टू अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंडरी oocyte अब मियोसिस 2 अंडरगो करेंगे। ठीक है, अब यहां भी एक मुश्किल आ गई। जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 के डिवीजन में एंटर करते हैं तो वो भी बीच में ही अरेस्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी जो मियोटिक 2 डिवीजन है, मियोसिस 2, वो भी बीच में ही अटक जाती है। ठीक है, वो क्यों अटक जाती है? उसको पूरा कौन करवाएगा? मियोसिस 2 की डिवीजन तभी कंप्लीट होगी, सिर्फ उसी सिचुएशन में कंप्लीट होगी, अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है ओवरी से रिलीज होने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब की एम्पुला रीजन में पड़ा हुआ है, अगर वहां कोई स्पर्म अप्रोच करेगा और वहां वो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा। ओके, सो ओनली इन दैट केस व्हेन the secondary oocyte is fertilized by a sperm in the ampulla region of fallopian tube, then only the meiosis 2 division will be completed and the result will be formed, which is called zygote. ठीक है, तो बड़ी क्लियर सी बात है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ प्राइमरी oocyte बनते हैं, लेकिन ये प्राइमरी oocyte बहुत लंबे समय तक चलते हैं। प्राइमरी oocyte की स्टेज जब फीमेल बेबी इज बोर्न, तो उसकी ओवरी में जितने भी oocytes हैं सब प्राइमरी oocyte की स्टेज में है, और सब मियोसिस 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, ये डिप्लोटीन स्टेज से मियोसिस 1 आगे कब बढ़ेगा? ओनली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के स्टेज आते ही प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड टू सेकेंडरी oocyte। ठीक है, प्यूबर्टी की स्टेज आने पर सारे oocyte प्राइमरी oocyte के स्टेज में होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने लगेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द मियोसिस 1। ठीक है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज आ जाएगी, सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल में सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte सारे प्राइमरी oocyte एक साथ सेकेंडरी oocyte नहीं बन जाएंगे, धीरे धीरे बनेंगे। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट होके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में इट विल वेट फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर ये सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो अपनी मियोटिक 2 डिवीजन, मियोसिस 2 डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा, ooted फॉर्म कर देगा। और अगर नहीं होती फर्टिलाइजेशन तो कभी भी सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 डिवीजन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। It will remain in the stage of secondary oocyte only, and after waiting in the ampulla for almost 48 hours, it will start undergo degeneration. वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही डिजेनरेट हो जाएगा, कभी ooted बनाएगा ही नहीं अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो। ठीक है, इसका मतलब नॉट ऑल सेकेंडरी oocytes turn into ooted. Only that secondary oocyte will complete meiosis 2 division, which will get a chance to get fertilized in the ampulla region of fallopian tube. The secondary oocyte which will not undergo fertilization in the ampulla will get destroyed there only, and it will be thrown out in the form of the menstrual fluid. Okay, in the menstrual cycle. अब आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। Any question? यहां तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, the only time an egg or in the medical term we call it secondary oocyte will complete meiosis 2 is if a sperm penetrates the egg, and then it will be called ooted or ovum, and it develops into a zygote,
and further it will develop into a fetus. ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई सारी कि सारे सेकेंडरी oocytes कभी भी oocyte में कन्वर्ट नहीं होते, यानी कि ओवम नहीं बनाते, सिर्फ वही सेकेंडरी oocyte ओवम बनाएगा जिसको चांस मिलेगा फर्टिलाइज होने का. ठीक है, आफ्टर दिस होल इंफॉर्मेशन नाउ वी कम टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स. मैंने कल एक डायग्राम दिखाया था आपको ओवरी का, जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल फिर बर्स्ट हो जाता है और उसमें से फंक्शनल ओवम सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में निकल के ओवरी से बाहर ओव्यूलेट हो जाता है. ठीक है, अब हम ये पूरी स्टेजेस ओवरी के अंदर की डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक आपको मैंने ये बताया, एट द टाइम ऑफ बर्थ all the surviving primary oocytes they are surrounded by a thin single layer of follicular epithelial cell. मैंने अभी आपको बताया कि बर्थ के टाइम पे ओवरी के अंदर जितने भी oocytes होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, वो कौन सी स्टेज में होते हैं? प्राइमरी oocyte से प्राइमरी oocyte की फॉर्म में होते हैं. और ये सारे प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 की डिवीजन में अरेस्ट हुए हुए हैं. मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज तक ही पहुंचे हैं, आगे नहीं गए हैं. आगे जाने के लिए उनको FSH का स्टिमुलस चाहिए जो प्यूबर्टी पे ही मिलेगा. ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ फीमेल ह्यूमन बीइंग द ओवरी कंटेन्स प्राइमरी oocytes which are arrested in the meiosis 1 डिप्लोटीन स्टेज. ठीक है, और अब ये प्राइमरी oocytes के आसपास एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर हो जाती है जिन्हें बोलते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, जब फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर बन जाती है प्राइमरी oocyte पे तो वो कहलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है, now oogonia they start division and enter the prophase 1 of meiotic division. They get temporarily arrested in the diplotin stage. Now they are called primary oocytes. आपको ये बता दिया मैंने. ठीक है, प्राइमरी oocytes के आसपास एक ग्रेन्युलोसा एपिथेलियल सेल्स की लेयर चढ़ जाती है और अब वो कहलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. तो इसका मतलब जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, प्रिमिटिव फॉलिकल्स, उनके आसपास ग्रेन्युलोसा एपिथेलियम की एक लेयर चढ़ जाती है और अब वो बना देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. अब इनका मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं. ये देखिए, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है. प्राइमोडियल फॉलिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक प्रिमिटिव oocyte है. ठीक है, एक oocyte सेल है. राइट, अब धीरे धीरे ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इसके ऊपर एक ग्रेन्युलोसा एपिथेलियल सेल्स की लेयर चढ़ गई. ठीक है, और इसके अंदर oocyte अब ग्रो कर रहा है. ठीक है, और आप देख रहे हैं इसके बाहर एक और लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर चढ़ गई है, उसे बोलते हैं जोना पैलिसिडा. जोना पैलिसिडा डेवलप होनी शुरू हो गई है. इसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, यानी कि प्राइमोडियल फॉलिकल के ऊपर जब ग्रेन्युलोसा एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर चढ़ जाती है तो उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है. ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. धीरे धीरे बर्थ के बाद डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लॉस्ट, दे आर डीजनरेटेड. ठीक है, और प्यूबर्टी पे ऑलमोस्ट सिर्फ कितने प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं? 60,000 to 80,000. पहले कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयर. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये डीजनरेट होते होते सिर्फ कितने बच जाते हैं? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. इतने कम प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं. ठीक है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स को धीरे धीरे और ग्रेन्युलोसा एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स सराउंड करने लगती हैं. देख रहे हैं आप, यहाँ सिर्फ एक लेयर है ग्रेन्युलोसा सेल्स की. अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कितनी सारी लेयर्स हो गई? 1 2 3 4. ये तो डायग्रामेटिक व्यू है, और ज्यादा लेयर्स चढ़ जाती हैं इस पे ग्रेन्युलोसा सेल्स की. और फिर ये मल्टीपल लेयर वाला जो फॉलिकल बन जाता है क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है. इस सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख सकते हैं अगेन oocyte इज देयर, और ये oocyte कौन सा है? प्राइमरी oocyte. अभी भी ये प्राइमरी oocyte है. सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है. प्राइमरी फॉलिकल, it is surrounded by more layers of granulosa epithelial cells and a new theca, a new layer is formed outside it, and now it is called secondary follicle. ठीक है, ये डायमेंशंस दी हुई हैं. 40 म्यूमीटर का प्राइमोडियल फॉलिकल था, ग्रो करके प्राइमरी फॉलिकल 100 म्यूमीटर्स का हो गया. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल 200 म्यूमीटर्स का हो गया. ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर ग्रो करेगा. ठीक है, कैसे फर्दर ग्रो करेगा देखते हैं हम. ये देखिए, ये सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर दो थीका डेवलप हो जाती हैं, दो लेयर्स डेवलप हो जाती है. सबसे बाहर की लेयर कहलाती है थीका एक्सटर्ना. ठीक है, और अंदर की लेयर कहलाती है थीका इंटरना. ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स है. थीका एक्सटर्ना, थीका मतलब लेयर, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, थीका इंटरना इज इंटरनल लेयर.
ठीक है। तो जितने भी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर थी, इसके बाहर एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बन जाती है। नाउ दिस फॉलिकल विल बी कॉल्ड अ टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है। यहाँ देखिए, यहाँ तो ग्रैन्युलोसा सेल्स कॉन्टिन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहे थे, कोई कैविटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच में कैविटी बन गई है। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भर गया है, इसे बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूलाए। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, यही इस लिक्विड को सिक्रीट करते हैं, और वो लिक्विड इनके बीच में जगह बनाते हुए यहाँ पे एक ये कैविटी में भर जाता है। इसे लिकर फॉलिकुलाई कहते हैं, यानी कि फॉलिकल से बनाया हुआ लिक्विड। ठीक है, और इस कैविटी का नाम हो गया एंट्रम। तो ये जो एंट्रल कैविटी है फिल्ड विद लिकर फॉलिकुलाई, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शियरी फॉलिकल्स का। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ सेंटर में क्या है, ये अगेन इट इज द फुली ग्रोन oocyte। कौन सी स्टेज में है oocyte? अभी भी ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, और टर्शियरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है। अब धीरे धीरे टर्शियरी फॉलिकल आगे और ग्रो करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल बना देगा। अब उसमें ये प्राइमरी oocyte डेवलप होके ये क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte बना देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कैसे होगा ये। लेकिन आपको पता है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कब कन्वर्ट होगा? ओनली व्हेन इट विल कंप्लीट मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में जो अरेस्ट हुआ है ये, इसकी मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगी? आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। इसका मतलब प्यूबर्टी तक ये टर्शियरी फॉलिकल्स की फॉर्म में ही ओवरी में रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद जब एफएसएच हार्मोन अफेक्ट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है प्राइमरी oocyte को, इट कंप्लीट्स इट्स मियोटिक 1 डिवीजन, मियोसिस 1 डिवीजन, एंड इट फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte। ठीक है, देखिए ये आपको सब दिखाई दे रहा है। मंजू यादव इज आस्किंग विच क्लास? सो क्लास इज 12th क्लास में का लेक्चर चल रहा है ये। वी आर स्टडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई एम टीचिंग यू द डिटेल्स ऑफ oogenesis। सो हियर यू कैन सी द फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी। देख रहे हैं आप, ये ओवरी है, इसमें देखिए आर्टरी है ओवरी में प्रोवाइड हो रही है, जो ये वेन है। ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, इनके अंदर भी आपको ये oocyte दिख रहे हैं। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए, इनके ऊपर एक थिन लेयर ग्रैन्युलोसा एपिथेलियल सेल्स की चढ़ गई। इनके अंदर जो दिख रहे हैं आपको oocyte, ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए। सेकेंडरी फॉलिकल में अगेन इसके अंदर प्राइमरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल में ये धीरे धीरे कैविटी बननी शुरू हो गई, फॉलिकल्स ने लिकर फॉलिकुलाई जनरेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कैविटी ऑर्गेनाइज कब बनती है? इन द टर्शियरी फॉलिकल। देख रहे हैं आप ये कैविटी, दिस इज कॉल्ड एंट्रम। इसमें लिकर फॉलिकुलाई भर गया है, और ये जो सेल दिख रहा है आपको, अगेन इट इज द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte after puberty it gets a stimulus and it completes meiosis 1 to turn into secondary oocyte। जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है, ये पूरा जो डेवलप्ड मैच्योर फॉलिकल है, इसका नाम अब हो गया ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी की पेरिफेरी पे ओवरी की ओवेरियन वॉल को पेनिट्रेट मतलब डीजनरेट कर देता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हो गया। देख रहे हैं आप, ये ग्रेफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया है, इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, जिसको एग लिखा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि ये एग का बायोलॉजिकल टर्म क्या है, स्टेज क्या है, सेकेंडरी oocyte। ये सारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैंने पहले भी बताया था। अब ये खाली हो गया ग्रेफियन फॉलिकल, एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है। ग्रेफियन फॉलिकल एम्प्टी होने के बाद ओवरी के मैट्रिक्स को एब्जॉर्ब करेगा, स्ट्रोमा कहते हैं इसको, ओवरियन मैट्रिक्स को, इसको एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल टर्न इनटू अ ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड बन गई है, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। धीरे धीरे ग्लैंड फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी, इट्स फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रीट करने लगेगा, नाम है उसका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तभी तक सिक्रीट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम तभी तक बना रहेगा जब तक ये ओवुलेट किया हुआ सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में सिचुएटेड है, फर्टिलाइजेशन के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, तो ये जाइगोट बना देगा। और अगर सेकेंडरी oocyte का फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो वहां पर ये कुछ देर वेट करने के बाद, ऑफ कोर्स आफ्टर 48 आवर्स स्लोली इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग।
डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। और जब ओवम ही डिजनरेट हो गया, सेकेंडरी oocyte ही डिजनरेट हो गया, तो फर्टिलाइजेशन का तो क्वेश्चन ही एंड हो जाता है, वहां फर्टिलाइजेशन अब नहीं हो सकती। और ऐसे में प्रोजेस्ट्रॉन की भी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने का काम करता है, ठीक है। और ये तैयारी तभी तक जरूरी है जब तक फर्टिलाइजेशन का कोई चांस है। अगर सेकेंडरी oocyte ही डैमेज हो गया, डिजनरेट हो गया, तो फर्टिलाइजेशन का चांस खत्म हो जाता है, और तब कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे रिग्रेस होने लगता है, डिजनरेट होने लगता है, उसका प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे रिग्रेस होकर कॉर्पस ल्यूटियम एक बहुत ही छोटा सा स्कार, एक निशान रह जाता है ओवरी पे, और उसे बोलते हैं हम कॉर्पस एल्बिकैंस, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम टर्न्स इनटू अ रेमनेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकैंस। तो अब आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया। प्राइमोडियल फॉलिकल टर्न्स इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल टर्न्स इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्न्स इनटू टर्शियरी, टर्शियरी तक की प्राइमरी oocyte है इसके अंदर। प्राइमरी oocyte फिर meiosis 1 कंप्लीट करता है आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी एंड टर्न्स इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। इसमें ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है। सेकेंडरी oocyte फुल्ली मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, स्टेज है, और ये ओव्यूलेट करके सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये सीधा ओवरी से बाहर आएगा। कौन कैच करेगा सेकेंडरी oocyte को? फिम्बरी। किसमें डाल देंगे? इनफंडिबुलम में। कहां पहुंच जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंच जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो एम्पुला में होगी। फर्टिलाइजेशन होने तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन खत्म हो जाएगी, और वो कॉर्पस एल्बिकैंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल about the development in the ovary. Now oogenesis में secondary oocyte का formation मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ tertiary oocyte, tertiary follicle का formation एक बार फिर से दिखाया गया है। देखिए tertiary follicle दिखाया हुआ है। tertiary follicle में secondary oocyte तब बनेगा जब tertiary follicle के अंदर क्या हो जाएगा? It will finish the meiosis 1, ठीक है। At this stage, the primary oocyte within the tertiary follicle grows in the size, completes the first meiotic division, and it is going to give rise to haploid secondary oocytes. अब ऐसे स्टेज में इस tertiary follicle को क्या कहा जाता है? It turns into Graafian follicle, ठीक है। Now formation of Graafian follicle. Tertiary follicle further changes into mature Graafian follicle, जिसके अंदर secondary oocyte पूरा बन चुका है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte एक नई मेम्ब्रेन कंप्लीटली फॉर्म कर लेता है। देख लीजिए ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके आसपास ये ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, ओके, जोना पेल्यूसिडा। सो क्यूमुलस oophorus, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फॉलिकल सेल्स। दिस इज द फॉलिकुलर एंट्रम, एंट्रल कैविटी, इसमें फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना है, उसके अंदर थीका इंटरना, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं ये, ठीक है। ये ग्रैन्युलोसा की लेयर है, जो मैंने आपको ग्रैन्युलोसा एपिथेलियल सेल्स की लेयर बताई थी, इसका नाम है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, ठीक है। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम के अंदर ये क्यूमुलस oophorus है, जिसमें दिखा रहे हैं कि बहुत सारे फॉलिकल सेल्स एक तरफ एक्यूमुलेट हो गए हैं, राइट। देन जोना पेल्यूसिडा की लेयर आती है। जोना पेल्यूसिडा के बाद ये पूरा सेकेंडरी oocyte है, राइट। चलिए, तो ओवुलेट होकर सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आ जाता है, राइट। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आपको ये क्लियरली पता चल रहा होगा, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बना, जिसमें सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया है। सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन से बाहर आ गया, ओवम लिखा हुआ है, लेकिन इसका असली नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, इट विल टर्न इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तब बनाना बंद करेगा जब फर्टिलाइजेशन का चांस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो एम्पुलर रीजन में ओविडक्ट के पड़ा हुआ है, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाएगा और वो कॉर्पस एल्बिकैंस बना देगा। ये लेबल नहीं है, पर आपको पता चल चुका है ये कॉर्पस एल्बिकैंस है। सो ये आपका सेक्शनल व्यू है ओवरी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जाम। इसकी स्लाइड देखेंगे आप एज वेल एज योर थ्योरी एग्जाम। फिर से फॉलिकल्स दिखाए हुए हैं, देखिए ये फॉलिकल की फॉर्मेशन है। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ये ग्रैन्युलोसा एपिथेलियल इसके ऊपर चढ़ गई। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा एपिथेलियल लेयर्स आ गई। फिर ग्रोथ हुआ, टर्शियरी फॉलिकल बन गया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका ये एंट्रल कैविटी, ठीक है। देन
फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये प्री ओवुलेटरी स्टेज आ गई है, टर्शरी फॉलिकल विच लेटर फॉर्म्स इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। सारी स्टेजेस आपको दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये एंट्रल फॉलिकल हम टर्शरी फॉलिकल को कहते हैं, जिसमें एंट्रम दिखाई दे रहा है। उसके बाद एफएसएच और एलएच के सर्ज से मैचुरेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है, और ये एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल पीछे रह गया, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल लेटर टर्न्स इनटू एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सारी बात आपको समझ आ गई। यहाँ सेकेंडरी oocyte दिखाया हुआ है कि जब ये प्राइमरी oocyte meiosis 1 कंप्लीट करेगा तो ये जो बिगर सेल बना है सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा, और जो स्मॉलर सेल बनेगा ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ये भी हमने कल बात की थी, राइट। ये सारी फिर से स्टेजेस है, राइट। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, थर्ड नंबर पे आ गया ये ग्रोइंग फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इट टर्न्स इनटू ग्रेफियन फॉलिकल, ये सेकेंडरी oocyte लिबरेट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेज, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। So menstrual cycle, you all know, primates they undergo menstrual cycle. Each menstrual cycle lasts roughly 1 month, 28 days, and it begins at the puberty. The stage when the menstrual cycle begins is menarche stage, and it ends at menopause stage. Okay, the age at which the menstrual cycle ends and no more new ovum is formed, that stage is menopause stage. ठीक है, तो menopause stage comes on an average at 50 years of age in the human females. Now there are two key group of hormones which control and coordinate the menstrual cycle. They are the pituitary hormones and ovarian hormones. ठीक है, hormones का aspect बहुत important है menstrual cycle में, तो pituitary hormone और ovarian hormone मिलकर menstrual cycle को control करते हैं, right? Now menstrual cycle है क्या? ये एक cyclic event है, 28 days का cyclic event है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओवरी में से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस से, ठीक है। रिलीज हुआ तो वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, वहां फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो जो सेकेंडरी oocyte है जो एम्पुला रीजन में फेलोपियन ट्यूब के पड़ा हुआ है वो वहां डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, और जब वो डीजनरेट होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इन पार्ट्स। वो सेकेंडरी oocyte के पार्ट्स बन जाएंगे, ब्रोकन पार्ट्स बन जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वो। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि जब वो ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज हुआ था तो तभी एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल का क्या बन गया था? यस, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करने लगती है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो सारी प्रिपरेशन करता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए चाहिए। यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में बहुत सारी चेंजेस आती है, ठीक है। अब ये क्या चेंजेस करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? उसका काम है यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम उसको थिकन करना, उसकी थिकनिंग को बढ़ाना, उसे स्पॉन्जी कुशन्ड बनाना। कुशन्ड क्यों बनाना है? ताकि वहां पर आकर एम्ब्रियो आराम से इम्प्लांट हो जाए, वो उसकी अटैचमेंट बड़ी परफेक्टली हो जाए। इट शुड नॉट गेट डिटैच्ड, इतना टिश्यू कुशन्ड होना चाहिए कि एम्ब्रियो उसमें सिंक कर जाए, एम्ब्रियो उसमें सिंक कर जाए, और उसके बाद इट शुड नॉट गेट डिटैच्ड, क्योंकि अगर वो एंडोमेट्रियम से डिटैच हो जाएगा इट विल फॉल इन द यूटेराइन कैविटी एंड इट विल गेट अबॉर्टेड। सो the contact between the endometrium and the embryo should be profuse, it should be strong, ठीक है। तो इसलिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो थिकनिंग है इट शुड बी क्वाइट थिकन्ड। उसकी थिकनिंग को बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। कहां से निकल रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज जो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है वो नहीं फर्टिलाइज हुआ, तो वहां डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अब ओवम ही डिजेनरेट हो गया है, सेकेंडरी oocyte ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन का चांस निल है, जीरो है। ऐसे में जो तैयारी की गई थी इम्प्लांटेशन की, वो सब तैयारी का भी अब कोई फायदा नहीं। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जो थिकनिंग एडिशनल बनी थी,
और वहां एक्स्ट्रा ब्लड वेसल डिपॉजिट हुई थी वेस्कुलराइजेशन के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की ब्लड सप्लाई के लिए, वो सब अब बेकार है, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब बेकार टिश्यूज जो है बॉडी रिजेक्ट कर देती है, बॉडी इनको डिजेनरेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। द एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक्स ऑफ, the blood vessels which were extra deposited there, they break off and they are also converted by parts. और ये सारा broken tissue, it is eliminated from the human body in the form of menstrual flow. Along with mucus, it is given out in the form of menstrual flow through the uterus, cervical canal and vagina. ठीक है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस में मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीजें बाहर आती हैं, द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द सेकेंडरी oocyte which could not get fertilized, the extra deposited tissue in the endometrial lining along with the blood vessels. Okay, so this all the blood and these broken tissues, they come out along with mucus and it is called the menstrual flow and the process is menstruation. ठीक है, तो हम जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें हम ये सारे इवेंट्स को एक साइक्लिक फॉर्म में स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसको हम अलग अलग फेजेस में स्टडी करेंगे। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहले हम इसका मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद इसका आएगा प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज के बाद लास्ट विल बी द ल्यूटियल फेज। चारों फेजेस के इवेंट्स, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, क्या काम करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको ये बता दूं, दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे मेनली एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, राइट। एंड ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ओवरी के फॉलिकल से रिलीज होते हैं और ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नाउ ये सब फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आया, वो यहाँ नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज, इसको और डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विथ, अब आपको ये मैंने बता दिया है कि 28 to 29 डेज का साइकिल होता है, ये इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। फीमेल प्राइमेट्स में पाया जाता है, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द की इवेंट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 की इवेंट्स हैं इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द ल्यूटियल फेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। ये सारे इवेंट्स में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इफेक्ट कर रहे हैं, उनके लेवल्स क्या हैं और एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्या स्टेटस है। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है, यानी कि द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड secondary oocytes along with the broken tissues of endometrial lining, the blood vessels, the blood, they all are coming out through the birth canal, through the uterus, cervical canal and the vagina. It is called the menstrual flow, ठीक है। so ये सारा जो इवेंट है, जो menstrual flow जो पूरा रिलीज करता है इन broken tissues को, ये कब तक चलता है, it lasts for 3 to 5 days. In some female individuals it gets completed in 3 days, in some it may last to 5 days, ठीक है। तो menstrual flow results in due to the breakdown of endometrial lining of the uterus, blood vessels which form the liquid that comes out through the vagina. Menstruation occurs only if the released ovum, the secondary oocyte, is not fertilized, ठीक है। फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ही ब्रेक होगा और तभी वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू डिस्चार्ज होगा बॉडी से, ओके। अगर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट बन गया है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स menstruation is delayed or it is not there if the individual is weak. अगर उसमें कुछ वीकनेस है, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, तो भी मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्किप कर सकता है, ठीक है। If fertilization does not occur, corpus luteum also starts degenerating and it forms corpus albicans. तो ये सारा menstrual phase में होता है, सब कुछ पहले फेज में होता है menstrual cycle के, ये सारे events। Hormones इसमें कौन कौन से हैं? कॉर्पस ल्यूटियम आपको मैंने बताया डिजेनरेट तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकी, ठीक है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा तो कॉर्पस एल्बिकैंस बन जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स दोनों ही ड्रॉप कर जाएंगे, लो हो जाएंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम को अब मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है,
प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकन्ड रखना, उसको मेंटेन करके रखना इम्प्लांटेशन के लिए। पर जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होने वाली है। ऐसे में प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है ड्रॉप कर जाता है, और इसके ड्रॉप होने का मेन कारण है कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेट हो जाना। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बन चुकी थी एज अ प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन, वो स्लो ऑफ होनी शुरू हो जाती है, डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती है, एंड इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों की लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, और इन दोनों के लो हो जाने की वजह से जो एंटीरियर दे आर टू लो टू इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब तक इनके लेवल्स प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के हाई रहते हैं तब तक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स इनहिबिट हो जाते हैं, वो नहीं रिलीज हो पाते। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं? एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच एलएच हार्मोन तब तक एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलेंगे जब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम की डिजेनरेट होते ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है, और ऐसे में एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाती है और अपने हार्मोन्स को रिलीज करने लगती है। फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी से उसके दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, और एक नया साइकिल बनता है नए सेकेंडरी oocyte के बनने का और रिलीज होने का फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग्स दे हैव टू ओवरीज, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। If in one menstrual cycle the left ovary forms the secondary oocyte and it comes to the left fallopian tube for fertilization, then in the next menstrual cycle the right ovary will form the ovum and it will come to the right fallopian tube for fertilization. तो alternately left और right ovary में ये ovulation का process चलता है, right? Now second phase is the menstrual phase. Menstrual phase के main events क्या है? The primary follicles in the ovary they grow, क्योंकि अब फॉलिकुलर फेज में क्या हो गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई है, उसने अपने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दिया है, एलएच एफएसएच हार्मोन का जो कंटेंट है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हाई हो गया है ब्लड में, तो इसकी वजह से प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी के हैं वो अब ग्रो करने लगेंगे एंड दे विल टर्न इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, अ न्यू सेकेंडरी oocyte विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, साइमल्टेनियसली अब क्या होगा, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte रिलीज होके बाहर आया, ओव्यूलेट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल विल टर्न इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या फॉर्म करने शुरू करेगा? यस, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ है, राइट? अब एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस की है वो फिर से अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देगी थ्रू प्रोलिफरेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अपने आप को रीजनरेट करेगी, अपना रिपेयर करना शुरू कर देगी, राइट? मेंस्ट्रुअल फेज में वो डिजनरेट हो गई थी, अब फॉलिकुलर फेज में वो धीरे धीरे अपना रिपेयर करना शुरू कर देगी, क्योंकि फिर से उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होना है। ये सारी चेंजेस ओवरी में हो रही हैं, ठीक है, और यूट्रस में होती हैं, और ये सब चेंजेस को कौन इंड्यूस करता है? पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। The secretion of gonadotropins LH and FSH from the anterior pituitary ये धीरे धीरे इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, और ये फॉलिकल्स जो हैं ओवरी में धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो एस्ट्रोजन लेवल आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द ओवरी। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स, क्या रोल है हार्मोन्स का? पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच है, एफएसएच एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, इसका काम है ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना और उनको ये प्रमोट करना ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, सो आउट ऑफ मेनी फॉलिकल्स ओनली वन follicle, only one primary oocyte starts getting converted to secondary oocyte and forms the Graafian follicle. ठीक है, the dominant follicle produces estrogen which inhibits FSH secretion. अब जो फॉलिकल डोमिनेट कर गया, जो प्राइमरी oocyte जो है डोमिनेंट है, जो सेकेंडरी oocyte बनाने वाला है, वो अब एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन का रोल क्या है कि वो FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, ताकि बाकी के फॉलिकल्स अपने आप को डेवलप करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट ना कर सकें। नहीं तो एक ही साथ सारे प्राइमरी oocyte अगर सेकेंडरी oocyte बन जाएंगे तो आगे के साइकिल्स में सेकेंडरी oocyte बनने के लिए बचेंगे ही नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte बने और बाकी के फॉलिकल्स फिर से इनहिबिट हो जाएं फर्दर डेवलपमेंट के लिए, और उनको इनहिबिट करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन एफएसएच सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है ताकि एक ही फॉलिकल सेकेंडरी oocyte में टर्न हो जाए और बाकी सब फॉलिकल्स अभी अपने प्रिमिटिव स्टेज में ही बने रहे फॉर द फ्यूचर रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ओके, ओवेरियन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या है? इट एक्ट्स ऑन यूट्रस टू स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, एक तो एस्ट्रोजन का काम है एफएसएच की सिक्रीशन को रोकना और दूसरा ये यूट्रस को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो एंडोमेट्रियल लेयर को रिपेयर कर ले। ओके, नेक्स्ट इज द ओव्यूलेटरी फेज। ये फेज अलग से आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ। एक्चुअली इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फॉलिकुलर फेज ओनली। आपकी बुक में फॉलिकुलर फेज के ही लास्ट में ओव्यूलेटरी फेज को इंक्लूड कर लिया गया है। इसको एक अलग फेज में भी काउंट किया जा सकता है, ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये। इवेंट्स क्या है? इसमें एलएच एफएसएच दोनों ही हार्मोन्स अपने बिल्कुल पीक पे होते हैं, इनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। ये ओव्यूलेटरी फेज कब आता है? ये आता है ऑलमोस्ट 14th डे। ठीक है, आपको मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल फेज कब चलता है। अगर हमें साइकिल को 28 या 29 डेज का साइकिल माने तो मेंस्ट्रुअल फेज 0 to 5 डेज तक चला। ठीक है, फर्स्ट 5 डेज, 6th डे से लेकर 13th डे तक। ठीक है, 6 से 13th डे तक चला फॉलिकुलर फेज। 14th डे विच इज द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे को हम कौन से फेज मानते हैं? ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि इसी दिन 14th डे में ही ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है, 13 डे भी हो सकती है, 14 डे भी हो सकती है, कुछ इंडिविजुअल्स में डिले होकर 15th डे भी हो सकती है। मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, ऑन एन एवरेज 14 डे मानते हैं हम, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल्स में ओव्यूलेटरी डे जो है, ओव्यूलेटरी फेज अलग अलग दिन आ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, द लाइफस्टाइल ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, द हार्मोनल लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, तो बहुत सारी कंडीशंस इसमें मैटर करती है। तो 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज हुआ। इसमें क्या हुआ? एलएच का जो कंटेंट है मैक्सिमम होता है, एलएच का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमें पता है ओव्यूलेशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, इट लीड्स टू मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच ड्यूरिंग द मिड साइकिल, दैट इज हैविंग द ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इस रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच को? एलएच सर्ज। सर्ज मतलब ह्यूज अमाउंट में सिक्रीशन हो रहा है, तो एलएच सर्ज हो गया। इसका कंटेंट, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉर्मली हाई है। ठीक है, और ये एलएच के सर्च का फायदा क्या होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? इट इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है और उससे सेकेंडरी oocyte या ओवम ओवरी से निकल के बाहर आ जाता है, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो अगर आपको पूछा जाए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो आप बोलेंगे एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या रोल है फिर हार्मोन्स का? एस्ट्रोजन ओवेरियन हार्मोन है जो ये स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को ताकि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज करे। कौन सा हार्मोन्स है इसके? एलएच। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है कि एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। ये पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट करता है इन द सर्ज ऑफ एलएच हार्मोन एंड लेसर सर्ज ऑफ एफएसएच। एफएसएच की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और फॉलिकल्स को भी हमने सिंथेसाइज और फॉलिकल्स को हमें स्टिमुलेट नहीं करवाना है। तो एस्ट्रोजन डबल काम कर रहा है, एलएच के सर्ज को बढ़ा रहा है, एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, लास्ट फेज इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के इवेंट्स क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू, अब ग्रेफियन फॉलिकल ने ओव्यूलेट कर दिया ओवम को, सेकेंडरी oocyte को ओवरी से रिलीज कर दिया। अब जो एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करती है, इसे इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती है। ना सिर्फ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट होने के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में भी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन ही करती है। तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल सिर्फ इम्प्लांटेशन तक नहीं है, फर्दर जब तक उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है यूट्रस में, तब तक प्रोजेस्टेरॉन का कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है। Endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. Okay. Then role of hormones, estrogen and progesterone, ये दोनों ही ओवेरियन हार्मोन्स हैं और ये यूट्रस पे एक्ट करते हैं ताकि यूट्रस की इनरमोस्ट लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाए और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाए, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन साथ ही साथ इनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन एक इनिबिशन का भी काम करती है। ये नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन करती है, कैसे? एलएच और एफएसएच को एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने से रोकती।
ताकि जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यूड है, जब तक इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो का यूट्रस में डेवलपमेंट चल रहा है, कोई भी और नया फॉलिकल ओवरी में डेवलप ना हो जाए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है और फॉलिकल के डेवलप होने की, उनको सेव करके रखना है आगे के लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों एक तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कर रही है और साथ ही एंटीरियर पिट्यूटरी में इनहिबिशन कर रही है एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन का, so that no more follicle is developed. So this is the luteal phase. Luteal phase इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस ल्यूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है, राइट। अब इसमें अब ओवरव्यू देख सकते हैं कंट्रोल हार्मोन, ये हार्मोन का कंट्रोल क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज हुए, एलएच और एफएसएच। एफएसएच का काम होता है फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट करना ओवरी में, और एफएसएच साथ ही साथ एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं, उसको भी एफएसएच स्टिमुलेट करता है। एलएच का काम है ओव्यूलेशन कॉज करना, एंड इट आल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो एंटीग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर देगा। ओवरी से दो हार्मोन निकले हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम है यूट्रस की लाइनिंग को रिपेयर करना, थिकन करना इसको। एफएसएच एलएच को इनहिबिट करके रखना, जब प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो उसके बाद एफएसएच एलएच नहीं चाहिए तो इनहिबिट करना है इसको, और एफएसएच एलएच को ओव्यूलेशन से पहले स्टिमुलेट करना, ठीक है, ताकि ओव्यूलेशन करवाने के लिए एलएच बन जाए, और ओवरी में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाने के लिए भी एस्ट्रोजन एफएसएच को स्टिमुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इट इज आल्सो ओवेरियन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है यूट्रस की लाइनिंग को थिकन करना, एफएसएच एलएच के रिलीज को एंटीरियर पिट्यूटरी से रोकना जब ऑलरेडी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यूट्रस में चल रही है। तो ये ओवरव्यू है सब हार्मोन्स का। इसके बाद ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज है, 5 से लेके 14वें दिन तक फॉलिकुलर फेज है, 14th डे पे ये ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेटरी फेज आ गया, 15th डे से लेके 28th या 29th डे तक ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रीटरी फेज चल रहा है, ठीक है। ये जो दिखा रखी है ये आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिखा रखी है यूट्रस की। इन मेंस्ट्रुअल फेज एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज गेटिंग थिन, स्लो ऑफ हो रही है ये, ठीक है, मेंसेस फेज कहते हैं इसको हम, थिकनिंग कम हो रही है। धीरे धीरे फॉलिकुलर फेज में ये अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर रही है, देन रीजनरेट होते होते ओव्यूलेशन तक ये रीजनरेट हो चुकी है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन इसको और थिकन करने का काम करता है ताकि इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली हो जाए, और एक बार कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई सेकेंडरी ओसाइट की, तो डीजनरेट होने के साथ साथ ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, ये फिर से मेंस्ट्रुअल फेज में एंटर हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड अगेन द ल्यूटियल फेज, ठीक है। सो दिस इज अ साइक्लिक इवेंट। हॉर्मोन्स का भी इसमें आपको पूरा डिटेल शो किया हुआ है, इसको आप पढ़िए, जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उसके साथ ये पूरा मैच करता है। You can come up with the doubts in the comment box later. So now this is the assignment for you. Question number 1. In ovary, which structure transforms as corpus luteum? And name the hormone secreted by corpus luteum. Yes? कौन सा structure corpus luteum में transform होता है? Emptied Graafian follicle. ठीक है? और hormone कौन सा secrete करता है वो? Hormone secrete करता है ये progesterone. Question number 2. Next question is, where does fertilization normally takes place in human females? Yes, please give the answer. Yes, where does fertilization normally take place in human female? Fertilization takes place in ampulla region of fallopian tube. Okay, now question number 3. At what stage is the mammalian embryo implanted in uterus? Uterus में कहाँ mammalian embryo implant होता है? Uterus की कौन सी लेयर में? Yes, it is the endometrial layer of the uterus. Endometrial lining, innermost layer of the uterus. Question number 4. What is meant by LH surge? LH surge का मतलब क्या है? High concentration of luteinizing hormone is called LH surge. Okay, write the role of LH.
LH का क्या रोल है भाई? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये सेकेंडरी oocyte को ओवरी से रिलीज कराता है ताकि वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज हो सके। yes many of you are giving correct answers, very good. yes, all the students they have given correct answer, endometrial lining, बिल्कुल सही बताया आपने। yes, Alice Verma, KP Pingolia, Akanksha Upadhyay, Drishti, yes, Hariom, Bindu, correct answer beta, बिल्कुल सही answers दिया आपने। I hope this whole concept of menstruation is clear to all of you. And if there is any doubt, you can come up with a doubt tomorrow in the comment, or you can put the comment and I'll answer it tomorrow. Till then, thanks a lot. You are really good students. You are answering very well. And stay at home, stay safe, and take care of yourself and your families. Thank you.